Hello everyone, welcome to all of you in our YouTube channel MS Commerce Classes. Today we discuss a new topic, management. This topic will be helpful to all the plus 2 and plus 3 student. This is the first chapter of a business strategy and management book of a plus 2 second year student and both plus 3 student. Before going to the topic, first we understand the meaning of management. What do you mean by the management? The management means to manage something. The management means to manage something or someone. Management is the art of getting work done by others. It is an important part of an organization and basically it depends on different principles of management. The word management can break in three parts: manage, man, and T. That means managing a man in tactfully. That means managing a man in tactfully. Management involves it is the art of getting the things done through others. The management is a discipline process. मैनेजमेंट इज ए डिसिप्लिन प्रोसेस. ये जो मैनेजमेंट चैप्टर है पहले हमको समझना पड़ेगा मैनेजमेंट क्या है वो कैसे होता है. जब हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन में वेरियस टाइप्स ऑफ पीपल काम करते हैं तब सभी पीपल का ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है. बट ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव उनका गोल एक है. For achieving this goal, management is necessary. But the worker, the pupils are not work according to the organization's goal. They work in her own objective. So the organization cannot be achieve his goal. So that there is must be necessary of a management. So we call management is the art of getting work done by others. मैनेजमेंट एक ऐसा कला है जिसको कि कोई दूसरे व्यक्ति के द्वारा करा जाता है. इट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. विदाउट मैनेजमेंट नथिंग कैन बी पॉसिबल. कभी कभी हम मैनेजमेंट को एक डिसिप्लिन प्रोसेस भी बोलते हैं और मल्टी डिसिप्लिन प्रोसेस भी बोलते हैं और कभी कभी मैनेजमेंट को एक फंक्शन भी बोलते हैं. मैनेजमेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ आर्ट एंड साइंस. एक ऐसा कला है जिसको हम खाली नहीं पढ़ाई नहीं करते उसको अप्लाई भी करते इन आवर इनोवेटिव वे में. सम ऑथर gives here some definition in the next slide. According to F. W. Taylor, the management is the art of knowing exactly what you want men to do and then seeing that they do it in the best cheapest way. ये एफ डब्ल्यू टेलर जो एक ऑथर है उन्होंने एक डेफिनेशन दिया है कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट योर मैन टू डू एंड देन सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे. Another author, Henry Fowell, उन्होंने बोला कि the manage is to forecast, plan, to organize, to command, to coordinate and to control. ये दो ऑथर है ना उन्होंने दो डेफिनेशन दिया
उन्होंने बोला कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट योर मैन टू डू एंड देन सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। हमारा ऑब्जेक्टिव, जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव एक है, लेकिन तो वर्कर का ऑब्जेक्टिव थोड़ा डिफरेंट है। हमको हमारा ऑब्जेक्टिव चाहिए, हमारा गोल को अचीव करना चाहिए। सो हम हमारा वर्कर को मोटिवेट करेगा फॉर अचीविंग आवर गोल, फॉर अचीविंग आवर गोल। These are some basic meaning and some basic definition. The next slide, here is the characteristics of management. इसको भी हम नेचर भी बोलते हैं, फीचर्स भी बोलते हैं। These are some characteristics. First characteristic is management is a group of activities. Management is a group of activities. The next one is multidisciplinary. Then management is a goal-oriented process. Then management is a continuous process. Then management is a dynamic process. Management is the combination of art and science. Management is a factor of production, and management performs at all level. The first objective is management is the group of objective. Management is the group of objective. ये जो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्टिव दैट मीन्स क्या है ना, हमको जहाँ ग्रुप ऑफ पीपल काम करते हैं ना, वहाँ मैनेजमेंट का जरूरत है। या ग्रुप ऑफ पीपल काम कर रहे हैं, वहां पे मैनेजमेंट का जरूरत है। इन ऑर्गेनाइजेशन देयर आर वर्क डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल। जो एग्जांपल मैंने पहले दिया था, इन ऑर्गेनाइजेशन देयर वर्क डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल, बट द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज सेट, व्हिच इज टू suppose the goal of the organization is to achieving the profit, but in the organization there are various types of people, various types of worker work. All the workers objective is different, all are not in the same minded. Some want to do the work in a frequently, and some want to taking rest. These are the objective of the workers, but हमको हमारा ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहिए, हमारे गोल को अचीव करना चाहिए। इसलिए मैनेजमेंट ने, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट का जरूरत है। सो वी कॉल्ड द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, मैनेजमेंट इज ए ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज। मैनेजमेंट इज ए ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज, group of members who work together for the common objective. Group of persons or group of workers work together for the common objective. If there are working a group of people, there is a necessity of understanding of all the group members for the common objective. It is the functions of a management and clear to the all the person, all the members of the group. I hope you understand the meaning of a group of activities. The next one is multidisciplinary. Next one is multidisciplinary. हम मैनेजमेंट को मल्टीडिसिप्लिनरी प्रोसेस क्यों बोलते हैं? मैनेजमेंट कोई एक ही एरिया में काम नहीं करता है, सभी एरिया में उनका यूज है। जब फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट सोशियोलॉजी में भी काम करता है, इकोनॉमिक्स में भी काम करता है, स्टैटिस्टिक्स में भी काम करता है, एंड ऑपरेशन रिसर्च में भी काम करते हैं। सभी एरिया में हमको नॉलेज मिला एंड सभी एरिया में हम लोग उनको अप्लाई किया। सो वी कॉल्ड
management is the multidisciplinary. Management is treated as a separate subject matter of study. Through it, it is the separate disciplinary. The knowledge of the management has been derived from the sociology, economics, statistics, operation research, etc. That is why we call management is multidisciplinary. In the next characteristics is management is a goal oriented process. Management is a goal oriented process. ये जो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस को क्यों बोलते हैं? सेम लाइक्स ऑफ ग्रुप ऑफ एक्टिविटी. हमको हमारा गोल को अचीव करना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को उनका गोल को अचीव करना चाहिए. सो मैनेजमेंट को उनको ऑर्गेनाइजेशन का गोल को अचीव करने के लिए जो भी कुछ करना है उनको करना चाहिए. ऑल द एक्टिविटीज फॉर अचीविंग द कॉमन ऑब्जेक्टिव are classified and then allotted to the different person working in the group. जब एक ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव और उनका एक गोल है टू अचीव द प्रॉफिट, अचीव द हाई प्रॉफिट. इन दिस टाइम the work of the management to divide the work in the efficient worker in a particular way, then allotted their work for achieving their goal. For achieving their goal, the activities of a different groups are coordinated by the management. ये मैनेजमेंट जो है ना, उन्होंने जितना भी काम है सभी डिपार्टमेंट को सेम वे में बांट दिया. लेकिन उसका बाद वहां पे एक कोऑर्डिनेट चाहिए जिससे मैनेजमेंट ने उनका गोल अचीव कर पाएगा. दिस विल बी हेल्प इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव. द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज मैनेजमेंट इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस. मैनेजमेंट इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस. ये जो कंटिन्यूअस प्रोसेस क्या है ना, मैनेजमेंट कभी एक शुरुआत होके साइलेंट नहीं रहता है, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं कि मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस. जब भी चाहिए उनको एक कंटिन्यूअसली चलना चाहिए, ना कि हम एक काम स्टार्ट कर दिया वहां पे हमारा जस्ट मैनेजमेंट लगा दिया कि ऐसे ऐसे काम करो बस हो गया, तो ऐसे नहीं हो गया. तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मैनेजमेंट इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस because there is not a particular beginning and particular end. In the management process, that is the continuous process क्यों बोलते हैं उसको ना, उसके अंदर में आते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग etc. After total planning is not completed the work of management. After the planning, the next work is organizing. हमने प्लानिंग कर दिया, वहां पे मैनेजमेंट लगा दिया, तो उसके बाद तुम क्या हम साइलेंट बैठ जाएगा? ऑर्गेनाइज करना भी है ना, ऑर्गेनाइज करने के लिए मैनेजमेंट का नेसेसरी है. तो उसके बाद जब हम स्टाफिंग करेगा उसके लिए भी तो मैनेजमेंट जरूरत है. तो इसलिए हमने बोला मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस. The next characteristics is management is a dynamic process. Dynamic process क्यों बोलते हैं इसको? The management, जो मैनेजमेंट है ना वो चेंज करता है उसका वेरिएबल आपके हिसाब में. जब भी ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत है उनका प्लानिंग थोड़ा चेंज करना है, तो इस टाइम पे क्या करेगा मैनेजमेंट? कुछ ना कुछ चेंज करके उनके ऑब्जेक्टिव के तक
समझना है। तो इसलिए हमने बोलता है कि मैनेजमेंट इज डायनामिक प्रोसेस। डायनामिक प्रोसेस मीन्स इट विल बी चेंज और इनकॉर्पोरेट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। जो भी ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायर है कुछ चेंज करना है, तो इसी टाइम पे मैनेजमेंट को थोड़ा बहुत चेंज करना है, उनका प्लानिंग थोड़ा बहुत चेंज करना है, सो दैट उन्होंने उनका गोल को अचीव कर पाएगा। So we call management is a dynamic process. It will be changed according to the environment change. जब भी ऑर्गेनाइजेशन का जरूरत है कुछ बदलाव के लिए, तो भी मैनेजमेंट कुछ चेंज करेगा, इसलिए वी कॉल मैनेजमेंट इज ए डायनामिक प्रोसेस। इन द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज मैनेजमेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस। द कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस मीन्स मैनेजमेंट एक कला है और उसको भी हम अप्लाई करेगा इन इनोवेटिव वे में। मैनेजमेंट को हम पहले समझेंगे वो क्या है कैसे होता है, तो उसका बाद हमको अप्लाई करना है कोई भी फील्ड में। सो वी कॉल मैनेजमेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस। द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज मैनेजमेंट इज फैक्टर फॉर प्रोडक्शन। ये जो फैक्टर प्रोडक्शन क्या है ना, कोई भी प्रोडक्शन के लिए हमको कुछ फैक्टर की जरूरत है। दिस फैक्टर्स आर मैन, मटेरियल, मशीनरी एंड मनी। These are the four factors of a production. But without management, there is no complete factor of a production. There is no complete production. मैनेजमेंट का जरूरत है, जहां पे कुछ भी प्रोडक्शन हमको करना है उसी टाइम पे हमको मैनेजमेंट का जरूरत है। सपोज हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन, हमारा जो कंपनी है उनको हम जो कंपनी में हम सैमसंग का मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वहां पे वर्कर भी काम करते हैं, मटेरियल भी है, मनी भी है, मशीनरी भी है। जो मैंने बोला ना फोर फैक्टर प्रोडक्शन, मैन, मटेरियल, मशीनरी, मनी। क्या हम एक कंपनी में आदमी को खड़ा कर देंगे तो उसके बाद मशीनरी डाल देंगे, देन पैसा कुछ रख देगा, देन जो मटेरियल वहां पे रख देगा, काम हो जाएगा, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा। विदाउट मैनेजमेंट, विदाउट मैनेजमेंट नथिंग इज पॉसिबल, बिकॉज द मैन लिव्स इन द सोसाइटी विद अदर्स, ही ऑलवेज ट्राई टू डेवलप विद अदर्स, विद द हेल्प ऑफ अदर्स। इसलिए हमने बोला था ना मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन विद अदर्स। ये जो बोला ना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो भी हमको ये प्रोडक्शन करना है तो भी ये चार ही फैक्टर के साथ हमको फिफ्थ फैक्टर मैनेजमेंट का जरूरत है। वहां पे मैनेजमेंट आएगा तो काम तो सही तरह से होगा ना। इन द नेक्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ management is management performs at all level. In the organization there are three types of level: top level, middle level and lower level। ये जो थ्री टाइप्स ऑफ लेवल है ना, सभी लेवल में मैनेजमेंट का जरूरत है। टॉप लेवल में भी मैनेजमेंट का जरूरत है, मिडिल लेवल का भी मैनेजमेंट की जरूरत है, लोअर लेवल में मैनेजमेंट का जरूरत है। ये जो टॉप लेवल में जो कंपनी का सीईओ हो और एमडी हो, उनके बीच में अच्छे कोऑर्डिनेटेड अच्छा से मैनेज हो पाए तो उन्होंने काम को मिडिल लेवल तक पहुंचा सकेगा। आफ्टर ऑल द मिडिल लेवल में आएगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट लाइक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट। ये जो दीज टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट, दीज आर तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट।
उनके बीच में अच्छे संबंध होगा तो अच्छे से मैनेजमेंट हो पाएगा, तो उन्होंने काम को लोअर लेवल पर पहुंच जाएगा। तो उनका पास नेक्स्ट में जो आएगा लोअर लेवल में अच्छा से मैनेजमेंट हो पाए तो प्रोडक्शन अच्छे से हो गया। तो हमने ये समझा कि मैनेजमेंट परफॉर्म्स एट ऑल लेवल। ये जो मैनेजमेंट है ना, उनका some characteristics हमने समझा। One is group of activities. Management is a multidisciplinary process. Management is a goal-oriented process. Management is a continuous process. Management is a dynamic process. Management is a combination of art and science. Management is a factor of productions. Management performs at all levels. These are some basic characteristics of management. In the next video, we upload the importance of management. हमने आज के लेक्चर में क्या समझा? द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है ना? मैनेजमेंट मीन्स टू मैनेज समथिंग और टू मैनेज समवन। कोई दूसरे व्यक्ति के द्वारा काम को करना है प्रॉपरली, इसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट। इसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट। ये जो मैनेजमेंट है ये एक डिसिप्लिन प्रोसेस है, यूनिवर्सल प्रोसेस है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेस लेक्चर। So wait for the next video. Till then, subscribe my channel and press the bell icon. Thank you.